Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. And students, from today onwards, we are going to start a new chapter, that is preparation of financial statements. What is financial statements? So immediately write your SR number in the comment section, and write your views regarding the chapters whatever taught to you in the last videos. Have you got it all that chapters? समझ में आ गया है? सारा कुछ नहीं आया है? Okay, because most probably in accounts we will finish our syllabus till September. Second last chapter is going on financial statement. After that, adjustments related to financial statement is there, and 1 or 2 theory chapters will left, so that we will also cover. So, and beta, this is the most important chapter of class 11th, which will help you in class 12th. Okay, so you have to study this chapter very carefully. को बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सो सी स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस which reveals the financial result of the specified period and financial position as on a particular date. ठीक है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस जो हो रहा है उसका एंड प्रोडक्ट है. ठीक है, लास्ट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, उसके लिए क्या स्पेसिफाइड पीरियड है. ठीक है, एंड क्या कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन लाई कर रही है. आर यू गेटिंग ऑल द थिंग्स? फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हाउ मच फंड्स कंपनी इज होल्डिंग, कितना पैसा है कंपनी के पास, एंड द कंपनी इज एबल टू फुलफिल देयर एक्सपेंसेस और नॉट, कि जो कंपनी है अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. राइट, सो अबाउट all these things we will take information from financial statement. Okay, it is a basic and formal annual report through which a business communicates financial information to its various users or groups. Okay, is it clear? Now see beta, we have to see what are the objectives of these financial statements. तो the very first objective, as I already told you, it provide the financial information about economic resources like assets and obligations, यानी कि liabilities of the firm, as well as to provide information about अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस फर्म. ठीक है, क्योंकि कंपनी की कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, कितना कंपनी कमा रही है, कितना कंपनी कमा सकती है. ओके, सो अबाउट ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, now see beta, what are the components of financial statements? So beta, financial statements are in two categories. Number one, income statement, and another one is statement of financial position. So in income statement we have to prepare manufacturing account, trading, then profit and loss. So this manufacturing is not related to your syllabus. In your syllabus only trading account is given and profit and loss account, and after that for the financial position we have to prepare balance sheet. Okay, manufacturing account is mostly for the recording of manufacturing expenses. After that trading account is prepared to calculate gross profit or gross loss from the डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनके बिहाफ पे हमें इनकम जो डायरेक्ट हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ. आफ्टर दैट वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ओवरकम द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके,
Is it clear? Now see, this is the format of trading account. On the top you have to write trading account, then after that for the year ended 31 March, okay, and you have to write टू ओपनिंग स्टॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री आएगी आपकी टू ओपनिंग स्टॉक, राइट. आफ्टर दैट सबसे पहले आपको जब शुरुआत करनी है, आपको पहले एंट्री डेबिट साइड में डालनी है ओपनिंग स्टॉक की. अगर नहीं है, ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बाय सेल्स. ठीक है, एक साइड एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले हम लोग क्रेडिट साइड, देन आफ्टर दैट वी विल कम टूवर्ड्स डेबिट साइड. ठीक है, इन द क्रेडिट साइड ओनली टू आइटम्स विल रिकॉर्ड बेटा. नंबर वन आपका सेल्स आएगी, और सेल्स की वैल्यू से जो भी रिटर्न है सेल्स, दैट यू हैव टू बेटा सब्ट्रैक्ट. ठीक है, फ्रॉम सेल्स यू हैव टू डिडक्ट सेल्स. आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न को बेटा रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव टू राइट क्लोजिंग स्टॉक. क्या लिखना होगा? क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट वी हैव टू राइट? क्लोजिंग स्टॉक. ओके, एंड दिस देयर इज नो यूज ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, and after that if debit side will be greater, then one more entry will be, that will be by gross loss transfer to, जो ये लिखा हुआ ना by gross loss transfer. Okay, this way we have to write. Okay, now come to the debit side. There is no use of this profit and loss. Okay, in the debit side we have to start first of all trading account by opening stock. Then after that we have to write purchases amount, and from purchase we have to subtract purchase return. Another name purchase return is return inward, और जो भी टोटल आएगा वो आप बाहर लिख दोगे. ठीक है, फिर उसके बाद में वेजेस आपको डेबिट साइड लिखनी है. देन आफ्टर दैट वेजेस एंड सैलरीज अगर दिया हुआ है तो वो लिखना है. फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर कैरीज इनवर्ड, फिर कैरीज ऑन परचेज, टू कस्टम ड्यूटी, to gas, fuel, freight, octroi, dock charges, excise duty, import duty. देन आफ्टर दैट अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई तो आपको लिख देना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर. ठीक है, दिस वे यू हैव टू राइट. और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, मतलब जो लॉस होगा लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफ़र होगा, इसलिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखा गया है. ये आपको ब्रैकेट में लिख देना होगा. ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो गया है तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, या सीधा आप लिख सकते हो टू प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जगह बाई ग्रॉस लॉस अकाउंट. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई. इनके अलावा कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा. ऑल दीज आइटम्स यू हैव टू लर्न एंड कीप इन योर माइंड. ठीक है, कि जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी बेटा, ऑल दैट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, किस में रिकॉर्ड होंगी? वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगी. ठीक है, एक बार फिर से समझा दूं, ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर इनकम. ठीक है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग उनको सेल्स की वैल्यू से माइनस करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये असर्टेन करने के लिए वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड अकाउंट. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी प्रिपेयर बेटा ओनली टू नो द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम the basis of indirect expenses and income. Here you can see a profit and loss account in which all gains and losses are collected in order to ascertain excess of gains over losses. ठीक है, this is the format of profit and loss account. First of all, if gross profit is there, so to trading account gross profit will be transferred. If loss is there, then loss will be transferred. देन आफ्टर दैट ऑफिस एक्सपेंसेस विल कम टू सैलरी टू वेजेस. अगर देखिए वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो पीएल में आएगा. ठीक है, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर पोस्टेज, देन लाइटिंग, देन इंश्योरेंस, देन प्रीमियम एंड अदर. एंड अगर जो भी इनकम हुई है वो इधर आ जाएंगे बाई रेंट, बाई डिस्काउंट, बाई कमीशन, बाई इंटरेस्ट, बाई सन्ड्री रेसिप्ट, बाई बैड डेट रिकवर, बाई सेल ऑफ रेसिप्ट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल दीज थिंग. ठीक है, जितनी भी इनकम है वो सारी आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी. ओके, सो दिस वे यू विल असर्टेन नेट प्रॉफिट और
नेट लॉस। ओके, एट लास्ट यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा वो आपका वहाँ पे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, या डायरेक्ट आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट जो भी आया है, लॉस आया तो माइनस कर देंगे। ठीक है, सो दिस वे वी विल प्रिपेयर द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वी विल एबल टू नो अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।